Hey students, now we are going to take up some questions from NCERT. In this video, we'll try to cover all the good questions of NCERT. And the next video, I'll be taking the questions from my book, plus I'll be adding something more for uh, extension of this, or you can say for competitive examinations. वो next video में करेंगे. पहले NCERT को select लेते हैं, ठीक है? ताकि आपको भी confidence बढ़ जाएगा कि हाँ चलो NCERT मैंने खत्म कर लिया. Now just see this question they have given, write in the form of it has been asked, write in the form of a plus ib. आपको पता है कि बिल्कुल सिंपल वे में अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 21 प्लस 21i. ये समझ में आ रहा है? 7 into 3 और 3 into 7 21 plus 7i plus 7i square, because I into I square. So this becomes 21 plus 28i minus 7. ये चलेगा क्या? क्योंकि i स्क्वायर का मान कितना होता है? -1. एंड दिस इज इक्वल टू 21 minus 7, दैट इज इक्वल टू 14 plus 28i. So this is you have written in the form of a plus ib. It was simple, you can say simplification of whatever we have done so far. So this is the first question. Similarly, second question, again it has been given in the same format. Write in the form of what? We have to write in the form of a plus ib. At first we have a big bracket. We can write 1 by 3 plus 1 by 4. एक साथ कर लेते हैं. Plus 7 by 3 plus 1 by 3. I को एक साथ कर लेते हैं. I को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. minus 4 by 3 plus I. ये हम अभी बाहर रखते हैं. सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास होता है 7 by 3, 3 into 4, 7 by 3 plus 8 by 3i. This is 1. 3 into 4, I'm sorry, very sorry, it is not 7, it is 3 into 4, 12 into 13 by 3. 4 3 12, 13/3 और ये 7 1 8/3 i हो गया. अब इसको अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके और यही हम माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, लिखते हैं 4 by 3 एंड माइनस i, तो हमारे पास कितना होगा? 13 by 3 प्लस 4 by 3. याद आ रहा है? रियल को रियल के साथ जोड़ते हैं. और 8 by 3 minus 1 by 3i, which is equal to 17 by 3 and plus 5 by 3i. So that is in the form of a plus ib. Calculations और आप लोग देख लीजिएगा. So this is second question. Now we have one more question. It's given question number 8. 1 minus I to the power 4. This is question number 8. You can always have 1 minus I whole square by whole square, 1 plus I square. It's 1 minus I the whole to the whole square, that is 1 square plus I square minus 2i. I square and 1 gets cancelled. I square equal to -1, so minus 2i the whole square. So that is minus 4. Now we'll take the next question, question number 10. It's -2 minus 1 by 3i the whole cube. We can always write minus outside because we take minus common. So this minus whole to the power 3 is equal to -1. So it becomes how much? Minus 2 plus I by 3 the whole cube. Now it is 2 whole cube plus, आपको पता है, a plus b whole cube. So 2 whole cube plus 3 times 2 square into 1 by 3i plus 3 into 2 into I by 3 the whole square and plus कितना होगा? It's I by 3 the whole cube. ये उसका एक्सपेंशन हो गया. हम लोग यूज कर रहे हैं a plus b whole cube. याद है ना? a plus b whole cube equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. That is the formula. So it becomes minus outside. It's 8 minus 4, 3 cancel, so this becomes 4i, then 3 cancel, it becomes 2 by 3i and plus I cube by 27. That is this is not -8, this is 8, yes, because it's only 2. So it is 8 4i and here it is
3 cancel, and then 2i, it should be I square, and then I cube by 27. Now, if we simplify further, it is equal to minus 8, and this is see, I square becomes minus 1, so minus 2 by 3. This is over. Then you can have 4i and plus, see, iq is equal to how much? I square into I, that is equal to minus I, because I square is equal to minus 1. So it becomes minus I by 27, isn't it? So further you can have minus outside. It's 24 minus 2 by 3 plus 4 into 27 minus 1 by 27, you know, and I outside. So this is equal to minus outside. It is no. It is it's not 21. It's 8 3 24 minus 2. So it becomes 22. So 22 by 3 प्लस, और इसका हो गया 108, 154, 108 माइनस 1 107, दैट इज 107 by 27 into I, and minus outside, so it becomes minus 22 by 3 and minus 107 by 27 I. Now just see in question number 11 and 12 we have to write the given we have a complex number and we want to find its multiplicative inverse. तो हम ये लिखते हैं कि multiplicative inverse of z is equal to 1 by z. That is equal to how much? 1 by 4 minus 3i. कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. मतलब क्या हुआ जी कि ये 1 by 4 minus 3i है, तो इसको 4 plus 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो ऊपर हमारे पास हो गया 4 plus 3i और नीचे हो गया 4 whole square minus 3i whole square which is equal to 4 plus 3i, 16 plus 9, that is 4 plus 3i by 25. So 4 by 25 plus 3 by 25i. देखिए ये सबको पता है कि हमारे पास a प्लस इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस. वो चाहे बोले चाहे नहीं बोले, आपको हमेशा उसी फॉर्म में लिखना है. इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका कितना होगा जी? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? 1 by z मीन्स 1 by हाउ मच? √3 plus 3i, और उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड कर लीजिए. Now you are given the last question of this exercise. This write the given expression in the form of a plus ib. ध्यान से देखिएगा, ये a plus ib into a minus ib, ये क्या होगा? 3 square minus √5i whole square, because it is a plus b into a minus b. इसको लेके आइए, it is √3 √2i minus √3 प्लस √2i. अब ध्यान से देख लीजिएगा, ये माइनस अंदर ब्रेक हुआ, माइनस √3 माइनस वन प्लस, ये 3 कैंसिल. ये वैल्यू हमारे पास हो गई 9 और यहां हमारे पास हो गया माइनस 5i स्क्वायर. याद रखिए √5 का स्क्वायर 5i स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2√2i हुआ. ये √2i. ठीक है, एक कबूतर दो कबूतर दो कबूतर, एक कबूतर एक कबूतर दो कबूतर. याद आ रहा है? तो हो गया √2i मतलब क्या? 2√2i. अब देखिए दिस इज इक्वल टू 9 plus 5. समझ में आ रही बात क्या? 9 plus 5 क्यों हुआ? क्योंकि i स्क्वायर इक्वल टू -1 -1 प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना होगा? 2√2i. यानी ये 14 by 2√2i हो गया, ये 7 हो गया. तो आपके पास हो गया 7 by √2i. लेकिन ये चलेगा नहीं, i आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा. तो हम इसे क्या करते हैं, नीचे ऊपर i से, याद रखिए
आपको सिखाया गया है कॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट रूप से करने के, यहाँ कर देंगे तो अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सिर्फ आई है तो हम बड़े आराम से आई को यहाँ से हम हटा सकते हैं. सो दिस बिकम्स 7i एंड दिस इज √2i², यानी 7i बाई माइनस √2. मतलब आपके पास आंसर कितना हो गया जी? 0 minus 7 by √2i. That is the answer for this. See, here we have got 7 by √2. हमारे पास कितना आया था? 7 by minus 7 by √2i आया है. इसको हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है. यहाँ तक हम पहुँचे थे, इसके बाद हम ऐसे पहुँच गए थे, फिर हम ऐसे यहाँ पहुँच रहे हैं, तो हमारे पास कितना हुआ? दिस इज इक्वल टू -7 बाई √2i. लेकिन समानता जानते हैं कि नीचे हम √2 नहीं छोड़ते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 7 इंटू √2 बाई √2 इंटू √2 इंटू i इज इक्वल टू 7 √2 by 2i. So that is the answer. Meaning if you want you can have 0 plus minus 7 √2 by 2i. ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं. So that is the answer. Now just see miscellaneous exercise. We will do some questions from here. It's question number 3. मैंने इसको इसलिए पहले करके रख दिया ताकि थोड़ी सी वीडियो लंबी होती जा रही है. And we'll be able to discuss more questions. So we are given, it's very simple. सिंपल आपको ऑपरेशन करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यही सब करना है. अब देखिए, अगर हमारे पास इतना दिया हुआ है तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस मीन्स 1 plus i, 1 minus 4i means 2 minus 8i, and these two are multiplied, it is brought here. This is equal to how much? Actually 1 minus 2 is equal to -1, minus plus 8i plus i is equal to 9i. इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4i इंटू आई माइनस 4i² यहाँ हो गया, और ये i और -4i यहाँ पर हो गया. ये अपने आप ऐसे ही आ रहा है. न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है. डिनोमिनेटर में देखिए 4i² मीन्स -1, 4 plus 1 5, so it is 5, and i minus 4i is equal to -3i, so this is the value. Now again we are going to multiply. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में करते हैं, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर कितना होगा? -3 and 9i 4i 36i² विद माइनस साइन मैंने यहाँ लिख दिया. इस 4i को 1 के साथ और 3 को 9 के साथ, i को एक साथ कर लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 33 प्लस 31i. 25 एंड -3i². देखिए 25 एंड 3i 3i, i² इक्वल टू -1, सो 28 minus 10i. 28 minus 10i ये कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है, इट हैज कम इन दिस फॉर्म. इन दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, सो वी हैव गॉट दिस आंसर. सो दिस वाज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्जुगेट एक्सेट्रा. देखिए वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 6. इफ a plus ib, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस तरह क्वेश्चंस और हम लोग और डिस्कस करेंगे. a plus ib is equal to s plus i whole square plus 2xy, then prove that this. देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर a plus ib का मान इतना दिया हुआ है तो दिस कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus ib. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है. अब एक चीज और ध्यान रखने की है, ये a² प्लस b² आपको दिखाई दे रहा है, मुझे तो वो a plus ib और a minus ib का मल्टीप्लीकेशन दिखाई दे रहा है. आप ऐसे जरा सोचेंगे, देखेंगे, मजा आएगा. a² प्लस b² नहीं है, बल्कि a plus ib इंटू a minus ib है. क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ a plus ib है. मैं सोच रहा हूँ a minus ib निकल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा. तो वी आर गिवन दिस वन. इसको पहले हमने एक्सपेंड किया. एक्सपेंड करने में क्या होगा? x² प्लस i² प्लस 2xi. याद आ रहा है? तो अगर ये कितना होगा? x² प्लस i² प्लस 2xi, तो i² इक्वल टू -1. वही मैंने कह दिया x² -1, क्योंकि डिनोमिनेटर वही है तो हमने इसके साथ भी लिख दिया इसको. यानी हमने इसको किसके फॉर्म में कर दिया? हमने इसको कह दिया ये a हो गया और ये b हो गया. अब एक बहुत स्पष्ट बात है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि a माइनस, भाई आप कहते हैं a का मान ये हो गया, b का मान इतना हो गया, तो पूछेंगे भाई अगर a माइनस b होगा तो बीच में माइनस हो जाएगा. तो हम लिखेंगे देयरफॉर a minus ib should be equal to how much? The same thing with minus sign. Now if you multiply both, मतलब क्या? Multiplying 1 and 2. जब हम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं 1 and 2, we get 1 by 2 means what? लेफ्ट को लेफ्ट में करना है, राइट को राइट में करना है.
तो उस केस में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू आई माइनस बी, रिजल्ट आपको मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर आई स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। क्यों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने 2x स्क्वायर को क्या लिख दिया 4x स्क्वायर आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या होगा जी, प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाउ मच, डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। आपने तो पहले से पढ़ के रखा है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू हाउ मच, a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ a का मान x स्क्वायर है, b का मान कितना है 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। Question number 10 is exactly the same question. You are given, if this is given, then prove that this. हम लोग ऐसे करते हैं, we have, ये हमारे पास है, ये prove that बाद में कर लीजिएगा। तो x प्लस आई वाई होल क्यू इज इक्वल टू दिस मच, इसका मतलब क्या होगा, आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट एक्स क्यू प्लस आई वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर आई वाई प्लस 3x आई वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। सीधी सी बात है भाई, हमने इसको क्यों किया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए कितना होता है, इज इट एक्स क्यू माइनस आई वाई क्यू, समझ में आ रही बात, क्योंकि आई क्यू हो गया, मैं बगल में लिखता हूं आई क्यू इज इक्वल टू माइनस आई, ऑलरेडी कह चुका हूं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, सो हो गया माइनस आई वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई आई हो गया, एक साथ ले लिया, और इसकी वैल्यू हो गई माइनस 3x वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर का मान कितना हो गया -1, हर जगह एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ये किसकी वैल्यू है, अब जब ध्यान से देखिए, रियल को एक साथ करिए, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर एक साथ कर लीजिए, प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू को एक साथ करिए, ये आई हो गया इज इक्वल टू यू प्लस हाउ मच आई बी। मतलब ये हुआ कि एक्स क्यू, अब ध्यान रखिए देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच आर इक्वल। ये तो भाई हमने कहा आइडेंटिटी यूज कर लिया, एक्सपेंड कर दिया, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 कर दिया, लेकिन अब हमारे पास जो आया है क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होते हैं, जब बराबर होंगे तो आप क्या लिखोगे, आप देखिए क्या पाना है, u बाई एक्स, तो हम लिखते हैं देयरफॉर, हम थोड़ा सा अपने स्टाइल में लिखते हैं, देयरफॉर u इज इक्वल टू हाउ मच एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहें तो लिख सकते हैं u बाई एक्स, या ऐसे ठीक है लिखिए u इज इक्वल टू एक्स आउटसाइड एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर। इस x को यहां आप कर लो, इसको मान लो दिस इज 1, मतलब इसमें से x से हमने इधर ला दिया क्योंकि हमको u बाई एक्स चाहिए था। एंड व्हाट इज v, v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई क्यू। देखिए v का मान क्या होगा, ये वाला, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि v बाई वाई इज इक्वल टू, यहां देखिए कितना होगा, ये 3x स्क्वायर वाई है, सॉरी, तो यहां कितना हो जाएगा, ये होगा 3x स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज 2। याद रखना ये है कि आपको जो रिजल्ट दिया है यू हैव टू कीप ट्रैक, नजर आपको उसी पर रखनी चाहिए, ये नहीं इधर उधर बवाने से गड़बड़ा जाएगा। तो अब हम लिखते हैं एड और एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है जी, u बाई एक्स प्लस b बाई वाई। अब खुद देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हाउ मच 4x स्क्वायर, एंड माइनस वाई स्क्वायर यहां पर है, और यहां पर हमारे पास 3
कि आपने कॉमन ले लिया था, x कॉमन लिया था, x कॉमन लिया था तो यहाँ पर x नहीं रहेगा, क्या होगा 3y स्क्वायर होगा। 3y स्क्वायर एंड y स्क्वायर कितना होगा? देखिए अगर आपका लक्ष्य क्लियर है तो बीच में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो सीधा हो जाएगा। तो ये समझ में आया, हमने एक्सपेंड कर दिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दिया, जो हमको चाहिए u by x और v by x करके दोनों को ऐड कर दिया, वी गॉट द आंसर। दिस इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस केस। देखिए वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि ये अंडर रूट 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या होती है जी? ये 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना हुआ x मॉड ऑफ 1 माइनस आई की वैल्यू क्या लिखते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ a प्लस आई बी। मैं याद दिला दूं, a प्लस आई बी का मॉड कितना होता है जी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही हमने कर दिया। ये वैल्यू किसकी है? 2 टू द पावर x की। ये वैल्यू कितनी हो गई? रूट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। रूट 2 मीन्स व्हाट? 2 टू द पावर 1 बाई 2 टू द पावर x इज इक्वल टू, ये समझ में आ रहा है ना? रूट 2 को हम बोलते हैं 2 टू द पावर 1 बाई 2। इसका मतलब हुआ कि 2 टू द पावर हाउ मच? 1 बाई 2 टू द पावर x, दैट इज व्हाट? 1 बाई 2x इज इक्वल टू 1 बाई 2 टू द पावर x है, आई एम सॉरी, 1 बाई 2 टू द पावर x है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बाई 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। मतलब हो गया ना, 1 बाई 2 का पावर x है। तो हम जानते हैं कि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो अब हमारे पास क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x बाई 2 इज इक्वल टू x। दिस इम्प्लाई दैट 2x इज इक्वल टू x, therefore 2x minus x is equal to 0. This implies that what? x is equal to 0. देखिए एक क्वेश्चन आपके पास है कि if a plus ib c plus id c e plus if g plus ih is equal to a plus ib, then you have to prove this one. देखिए एक पहले मैं आपको एक चीज पता है कि mod of z1 to z2 की वैल्यू होती है mod of z1 into mod of z2, and it can be extended to any number of complex numbers. मीनिंग अगर आपके पास z1 z2 z3 zn है ये होगा, ये दिमाग में आप रख लीजिए। तो अगर आपके पास ये हो गया तो बस खेल खत्म, अब कुछ करना ही नहीं है। हमने कहा कि भाई वी हैव दिस इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो आप लिख सकते हो टेकिंग व्हाट? मॉड इन बोथ द डायरेक्शन। तो आप लिखोगे देयरफॉर मॉड ऑफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इज इक्वल टू मॉड ऑफ व्हाट? a प्लस आई बी। याद रखिएगा अभी जो मैंने कहा था, a प्लस आई बी मॉड, c प्लस आई डी मॉड, E प्लस आई एफ मॉड, G प्लस आई एच मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ व्हाट? A प्लस आई बी। हो गया। और इसकी तो वैल्यू हमको पता है, दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर आप कर दीजिए, एंड वंस यू स्क्वायरिंग यू गेट दिस रिजल्ट। स्क्वायर करने से क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एनसीईआरटी। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल। एक हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो 90s में मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने हमको स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि सर जब वीडियो बनाइएगा तो ये वाला क्वेश्चन जरूर कर दीजिएगा। हमने कहा चलो भाई ठीक है, बता देते हैं। देखिए प्रैक्टिकली आपने क्या देखा है? आपने मॉडुलस और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज देखा है। तो ये बड़ा एक यूनिक एग्जांपल है जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है। जितना भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी यूज्ड हियर, ठीक है ना? तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आपका ज्ञान है सब यहाँ ले आके उड़ेल देना है, प्लस बाकी कॉमन सेंस तो होता ही है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से जा रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट
complex numbers, two different complex numbers with mod of beta is equal to 1, then you have to find the value of mod of beta minus alpha by 1 minus alpha bar beta. इसकी वैल्यू निकालनी है. हम स्टार्ट करना चाहते हैं. कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए, हम इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं. हम कहते हैं टेकिंग, पहले हम जो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है? बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका हम होल स्क्वायर लेते हैं. अब आपके मन में होगा सर पूछ तो वो रहा है, आप वैल्यू क्यों ले रहे हैं? थोड़ा सा इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होता है. देखिए, अगर ये ऐसा है तो आप चाहें तो कह सकते हैं कि भाई ये मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा बार बीटा है, और इस दोनों का स्क्वायर है. दोनों का स्क्वायर है तो आप चाहें तो इसका भी स्क्वायर कर लीजिए और इसका भी स्क्वायर कर लीजिए. तो समझ में आ रही बात? हमारे पास पता है कि मॉड ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 बाई मॉड ऑफ z2. एक प्रॉपर्टी तो भाई हमने यहाँ यूज कर दिया. किसकी? जो मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो गई. मॉड ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 बाई मॉड ऑफ z2. फिर उसका स्क्वायर है तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया. ये पहला हो गया. अब इसके अगर आप आगे करना चाहते हैं तो व्हाट शुड यू राइट? कैन यू राइट बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा बार एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा बार बीटा का बार. कैन यू राइट दिस वन? आप सोच के देखिएगा. कैन यू राइट दिस? अभी आपको दूसरी प्रॉपर्टी पर हम आते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? आपको याद आ रहा है? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार. ये प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज हो गई. यानी क्या? मॉडुलस और कॉन्जुगेट की जो दोनों को कनेक्ट करने वाली प्रॉपर्टी है वो यही वाली तो है. मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार. तो हमने मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, होल स्क्वायर को क्या लिखा? फर्स्ट वन सेकेंड वन का बार, फर्स्ट वन सेकेंड वन का बार. ठीक है. अब देखिए, इसके बाद फिर हम लिखते हैं कि भाई देखो, ये तो बीटा माइनस अल्फा है और ये हो गया बीटा बार माइनस अल्फा बार. याद आ रहा है कुछ? तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, z1 माइनस z2 का बार इज इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार. याद रखिए, तीसरा फॉर्मूला यूज हो गया. ये किसका है? कॉन्जुगेट है ना. कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ. सिमिलरली इन डिनोमिनेटर आल्सो यू कैन हैव 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और यहाँ 1 का बार तो कोई मतलब है नहीं, 1 ही रहेगा, और यहाँ होगा अल्फा बार बीटा बार. ये पूरा हो गया साहब. कुछ समझ में आ रही बात? क्या हमने किया? फिर वही कॉन्जुगेट वाला z1 माइनस z2, हमको पूरे का बार था, पूरे के बार को कह दिया दिस का बार, दिस का बार. अब जरा इसको सिंप्लीफाई करिए. जब सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है बीटा बीटा बार. देखिए, बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा. याद आ रहा है? बीटा अल्फा बार है, माइनस अल्फा बीटा बार. याद रखिए, अल्फा बीटा बार एंड माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार. ये चल रहा है. ये ऊपर वाला हो गया. नीचे वाला देखिए, दिस इज इक्वल टू, अब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हमने कह दिया 1 माइनस. अच्छा, एक चीज और है, अभी मल्टीप्लाई नहीं करिए, पहले आप इसको देखिए. इसको लिखिए 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और मैं इसको लिख रहा हूं 1 माइनस अल्फा बीटा बार. देखिए, ये कहां से आ गया भाई? बोलेंगे साहब आप तो अल्फा बार का पूरा बार है. मैं इसको अलग से कर दे रहा हूं. देखिए, अल्फा बार बीटा का पूरा बार, ये कितना होगा? ये होगा अल्फा बार का बार बीटा बार. याद आ रहा है? एक और प्रॉपर्टी, z1 z2 बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार. सो वी आर राइटिंग हाउ मच. हमने इसको लिख दिया, और हमें एक चीज और पता है कि z बार बार का मान क्या होता है? z होता है. इसलिए ये क्या होगा? अल्फा बीटा बार हो गया. 2 प्रॉपर्टी और लग गई.
वही मैं यहां मैंने लिख दिया क्या, अल्फा बीटा। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। इस तरह से हमारे पास यहां पर क्या हो गया, यहां हमारे पास हो गया अल्फा बीटा बार। याद रखिएगा किसकी जगह पर था, अल्फा बार, बीटा का होल बार जो था वो अल्फा बीटा बार है। कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसको जब और हम आगे बढ़ाते हैं, सो दिस इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं मॉड ऑफ बीटा होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको पता है बीटा बीटा बार इज इक्वल टू हाउ मच, मॉड ऑफ बीटा। इसी तरह से एंड अल्फा अल्फा बार इज इक्वल टू हाउ मच, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। याद आ रहा ना, बीटा बीटा बार अभी हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, हम उसी को ही कर रहे हैं। तो मैंने इसको लिखा मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये किसका है, इसका है, माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार। यहां तक क्लियर है। दूसरा देखिए नीचे, ये हमारे पास 1 है, 1 इंटू 1 है, फिर माइनस अल्फा बार बीटा भी है, माइनस अल्फा बीटा बार भी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है प्लस। ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, अल्फा अल्फा बार और क्या हो गया जी, बीटा बीटा बार। अल्फा बीटा बार को हमने लिख दिया अल्फा अल्फा बार। आप समझ रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा होगा, समझ में आ रही बात। क्या हो गया, बीटा मॉड ऑफ बीटा whole square, mod of beta is given, that is equal to how much, 1. So you can have 1 plus mod of alpha square चलेगा, माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार। ये तो भाई न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर देखिए यहां पर 1 हो गया, और यहां मैं लिख रहा हूं प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। कहेंगे सर ये कहां से आ गया, जरा इसके बारे में देखिए। अल्फा अल्फा बार इंटू बीटा बीटा बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर। याद आ रहा है, इसकी वैल्यू अलग इसकी वैल्यू अलग। जो मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर है तो उतना ही रहेगा, और इसकी वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर, यानी ये क्या होगा जी, ये मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है मैंने क्यों लिख दिया, इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। और बाकी जो चीजें हैं यानी अल्फा बार बीटा और अल्फा बीटा बार। यहां क्लियर है। अब देखिए अगर ऐसा हो दोनों कैंसिल हो, कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1। ये किसकी वैल्यू है, एक्चुअली दिस इज 1 इज इक्वल टू हाउ मच, ये वैल्यू है बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने यहीं से स्टार्ट किया था। देयरफॉर बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा mod is equal to under 1 is equal to how much, 1. This is what we wanted to prove. कहने का मतलब ये हुआ कि इस केस में आपने बहुत कुछ देख लिया। एक आपने क्या देखा, mod of z स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार, कई बार आपने देखा, 2-3-4 बार इसका यूज देखा आपने। फिर आपने देखा कि भाई देखो अगर mod of z1 बाई mod of z2 है तो इसकी वैल्यू होती है mod of z1 बाई mod of z2। फिर आपने कहा z1 बार, आपको याद है z बार इज इक्वल टू हाउ मच, z। फिर आपने एक चीज और देखा था कि अगर z1 माइनस z2 का बार है तो z1 बार माइनस z2 बार। फिर आपने देखा था z1 z2 बार इज इक्वल टू z1। आप देख रहे हैं जितना भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था सब प्रॉपर्टी को आपने यहाँ पर यूज कर दिया। सो दिस वे वी हैव डन दिस क्वेश्चन एंड NCERT is completed.